Very good morning to all of you. Today I am going to discuss numericals based on Kulraj law. Kulraj law of independent migration of ions. So in my last video, we have learned about Kulraj law. Kulraj law is that at infinite dilution, each ion makes a definite contribution towards molar conductance of the electrolyte, irrespective of the nature of other ion which it is associated. And the molar conductance at infinite dilution for any electrolyte is given by the sum of the contribution of the two ions. So it is well known fact that since molar conductance at infinite dilution for any electrolytes cannot be determined by extrapolation method. Okay, so Claus says that for any electrolytes the molar conductance at infinite dilution can simply be calculated as the sum of the values of ionic conductance contributed by each cation and anion present in the solution. So molar conductance or equivalent conductance of any electrolyte at infinite dilution is simply sum of the values of ionic conductance contributed by each cation and anion present in the solution. For example, sodium chloride. So for sodium chloride, no doubt it is a strong electrolyte. So its cationic is sodium plus and anion is Cl minus. So the molar conductance at infinite dilution for sodium chloride can simply be written as summation of its cation and anion. No doubt sodium chloride is a strong electrolyte, so its values can be determined by extrapolation method. Similarly for acetic acid, so acetic acid is a weak electrolyte, so it cannot be determined by extrapolation method, but however it can be easily calculated with the help of Kulraj law. For acetic acid, its cationic part is H plus and anionic part is acetate minus. So simply by getting the value of H plus and acetate ion and adding these two, we can get the values of molar conductance at infinite dilution for weak electrolytes such as acetic acid. Similarly, for sodium acetate, cationic part is sodium plus and anionic part is acetate minus. So just by adding these two, we can get the values of sodium acetate. However, for aluminum sulfate, so aluminum sulfate, aluminum is trivalent 3 plus, but a number of moles of aluminum in this aluminum sulfate is 2. So we have to multiply this values by 2 plus. Similarly, sulfate is 3. So 3 into lambda m infinity for sulfate ion. So just by multiplying the values of lambda m infinity for aluminum by 2 and lambda m infinity for sulfate by 3 and adding these two values, we can get the lambda m infinity for aluminum sulfate. Similarly for magnesium chloride, here chloride is 2. सो माइंड यहाँ में क्लोरीन 1 है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया है, लेकिन यहाँ में क्लोरीन 2 है तो इसलिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. The values of ionic conductance for cations and anions are almost given in numericals. Applications of Kulraj law. So first, number 1, the calculation of molar conductivity at infinite dilution of the weak electrolytes. Since it cannot be determined by extrapolation method, however, it can be easily calculated with the help of Kulraj law and the values of lambda m infinity for strong electrolytes. For example, just suppose that we have to calculate the molar conductance at infinite dilution for weak electrolytes such as acetic acid. So it can be calculated by using the data for strong electrolytes such as sodium chloride HCl and sodium acetate as follows. According to Kulraj law, acetic acid can be written as summation of anion, that is cation, plus anion, that is acetate. Similarly for HCl, it can be written as H plus plus Cl minus. Similarly for sodium chloride, it can be written as sodium plus plus Cl minus. Sodium acetate and sodium ion plus acetate ion. Now we have to find out the value of molar conductance at infinite for acetic acid. So acetic acid can be written as H plus plus acetate minus. ठीक है, acetate minus यहाँ में आ गया. अब यहाँ में क्या हमें सोडियम एसिटेट की वैल्यू पता है, नोन है बाय एक्सट्रापोलेशन मेथड सिंस इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो अगर हम एसिटेट को सोडियम के साथ यहाँ कपल कर दें तो अकॉर्डिंग टू कुलराउच लॉ ये दोनों वैल्यू मिलके क्या देगा हमें, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस. सो एसिटेट को सोडियम के साथ यहाँ में ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा सोडियम एसिटेट. सिमिलरली हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अगर ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, HCl, सिंस H plus plus Cl minus is HCl.
बट ठीक है, हमको निकालना था एसिटिक एसिड। यहाँ में ना तो सोडियम है ना तो क्लोराइड है, तो इसको हमने अपनी तरफ से ऐड किया है यहाँ पे सोडियम को और क्लोराइड को, इसीलिए यहाँ में हमें सोडियम और क्लोराइड को माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्लाउज लॉ लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर एसिटिक एसिड, सो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन, क्योंकि ये दोनों मिलके हमें दे देगा सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन प्लस प्लस Cl, ये दोनों मिलके देगा HCl। यहाँ में कोई भी सोडियम, इस इक्वेशन में कोई भी सोडियम और क्लोराइड नहीं है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या है सोडियम को ऐड करने का, क्योंकि वी हैव टू the value of sodium acetate is known, that is being a strong electrolytes. Similarly the value of HCl is known, being a strong electrolytes. ठीक है, चलिए इसके लिए एक शॉर्टकट है कि हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू दिया रहता है और हमें 1 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि जिसका हमें निकालना है उसका कैटायनिक पार्ट, जैसे हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालना है, इसका कैटायनिक पार्ट क्या है, अमोनियम प्लस। अमोनियम प्लस कहाँ में है, यहाँ में है। इसका एनायनिक पार्ट क्या है, OH माइनस, इसका एनायनिक पार्ट OH माइनस, तो वो कहाँ में है, यहाँ में है। ठीक है, तो दो वैल्यू को हमें प्लस करना है, उन दो वैल्यू को प्लस करना है जिसमें इसका 2 आयन कॉमन हो, दैट इज कैटायन और एनायन। तो कैटायन कहाँ में है इसका, अमोनियम आयन, OH आयन कहाँ में, NaOH, इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू को हमें प्लस करना होगा। ठीक है, देखिए थर्ड वैल्यू हमको यहाँ में दिया है सोडियम क्लोराइड, तो उसको हमें माइनस करना होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में इस जिसका हमें निकालना है उसमें ना तो सोडियम है ना तो क्लोराइड है। ठीक है, सो 3 वैल्यूज हमें दिया रहेगा अमोनियम क्लोराइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का, हमें निकालना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नोइंग द वैल्यूज ऑफ दीज 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब इसके लिए वही फार्मूला बनाएंगे, तो फार्मूला बनाने में शॉर्टकट इसका ट्रिक ये है कि हमें 2 वैल्यू को प्लस करना है, वो दोनों वैल्यू कौन सा होगा, जिसमें उसका दोनों आयन कॉमन है। तो कॉमन का हमें अमोनियम अमोनियम, OH OH, जो कॉमन नहीं है उसको हमें माइनस करना है। ओके, तो दिस इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, इस वैल्यू को माइनस करेंगे, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, दिस वन। सो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम कॉमन है, प्लस NaOH, क्योंकि यहाँ का OH और यहाँ का OH कॉमन है। ओके, इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये वैल्यू यहाँ में कॉमन नहीं है, तो माइनस NaCl। ठीक है, इन सब की वैल्यू में दिया रहेगा, जस्ट यहाँ वैल्यू रख के प्लस माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमें अमोनियम क्लोराइड दिया है, सिल्वर नाइट्रेट दिया रहेगा, अमोनियम नाइट्रेट दिया रहेगा और हमें AgCl का निकालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, Ag कॉमन प्लस कैटायन कहाँ में है, यहाँ में है, क्लोराइड कहाँ में है, यहाँ में है। तो जिसमें जो 2 आयन कॉमन है उन दोनों को हमें प्लस करना है, गॉट इट। जिसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है उसको हमें माइनस करना है। तो यानी अमोनियम नाइट्रेट, इसमें ना तो अमोनियम है ना तो नाइट्रेट है, तो सीधा सीधा कहें कि किसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे और इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या बनेगा, so molar conductance at infinite for AgCl equal to molar conductance at infinite for ammonium chloride, क्योंकि यहाँ में क्लोरीन कॉमन है तो पहले अमोनियम क्लोराइड आ गया, प्लस सिल्वर, इसलिए इसको सिल्वर नाइट्रेट को प्लस करना होगा, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, माइनस इस वैल्यू को हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है, तो ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, चलिए सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पे कि बेरियम क्लोराइड का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, हमें निकालना है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब इसमें किसमें को प्लस करेंगे, जिसमें इसका कैटायन पार्ट, यहाँ में बेरियम दिखाई दे रहा है, यहाँ बेरियम है तो प्लस करना पड़ेगा, यहाँ में OH है, यहाँ भी OH है, तो ऑब्वियसली इन दोनों वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा। तो माइनस किसको करना है, इसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बट यहाँ में देखिए कि यहाँ में OH कितना है, 2 है, क्योंकि बेरियम प्लस 2 OH माइनस 1, फॉर्मूले को बैलेंस करने के लिए यहाँ में डबल आएगा, लेकिन NaOH जब क्लोराइड चला से तो यहाँ में कितना देगा, सिर्फ 1 मोल देगा, तो इसलिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ में बेरियम क्लोराइड 2 है तो ये 2 देगा, 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड देगा, यहाँ में NaCl में सिर्फ 1 है, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली प्लस किसको करना है, ऑब्वियसली इन दोनों को, माइनस किसको करना है, NaCl को, बट इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगा, लाइक दैट। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू बेरियम क्लोराइड प्लस 2 इंटू
सोडियम हाइड्रोक्साइड -2 इंटू सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सो कोई भी 3 इलेक्ट्रोलाइट्स दिया रहेगा, किसी एक का हमें पूछेगा, 100% है कि इसमें हमें 2 वैल्यू को प्लस करना है और एक वैल्यू को माइनस करना है। प्लस किसको करना है? जिसमें दोनों वैल्यू कॉमन हो, उसका कैटायन और एनायन कॉमन होगा, और माइनस उसको करना है जिसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी देखिए अमोनियम नाइट्रेट इसमें नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट को माइनस किया, बाकी 2 वैल्यू को प्लस किया। वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दिया रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ मोल्स को मेंटेन करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको दो सेकेंड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन डिटरमाइन एट ए पार्टिकुलर डाइल्यूशन यूजिंग मोलर एट conductance at infinite dilution. So Kohlrausch proposed a formula for calculating the degree of dissociation. So molar conductance at other concentration, molar conductance at infinite dilution. इसको समझने के लिए और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट, calculate the molar conductance at infinite dilution for magnesium sulfate if the molar conductance at infinite dilution for magnesium and sulfates are given 106, 160 respectively. We have to find out the molar conductance at infinite dilution for magnesium sulfate. तो no doubt इसके लिए according to Kohlrausch law magnesium plus 2 plus sulfate. ओके, इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 106, सल्फेट की वैल्यू दिया है 160, दोनों को प्लस कर दिया 266। तो ये फाइनली वैल्यू हो गया molar conductance at infinite for magnesium sulfate. The second question, the value of molar conductance at infinite dilution of aluminum sulfate given है, सल्फेट का गिवन है, हमें क्या निकालना है? एल्युमिनियम 3+। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू कोह्लराउच लॉ एल्युमिनियम सल्फेट लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये जो वैल्यू दिया हुआ है और सल्फेट में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन ये जो सल्फेट की वैल्यू दिया है वो पर मोल का है। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट की वैल्यू दिया हुआ है, एल्युमिनियम की वैल्यू दिया हुआ है, एल्युमिनियम की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, सल्फेट की वैल्यू दिया, वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया, ये हमको मिल गया 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। थर्ड, देखिए 3 एग्जाम्पल, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू दिया हुआ है, एक हमको निकालना है, हमको किसका निकालना है? एसिटिक एसिड। यदि 3 में किसको प्लस करेंगे? जिसमें 2 आयन इसका कॉमन होगा, तो एसीटेट आयन HCl और सोडियम एसीटेट को प्लस करेंगे एज डिस्कस अर्लियर, माइनस सोडियम क्लोराइड। वैल्यू हमको दिया हुआ है क्योंकि सोडियम क्लोराइड इसमें कॉमन नहीं है, तो जस्ट प्लस माइनस करके वैल्यू सॉल्व कर देंगे। सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट, 3 वैल्यू हमें दिया हुआ है, एक वैल्यू हमको निकालना किसका है? सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए सोडियम नाइट्रेट, तो इसमें कॉमन क्या है? सोडियम। सोडियम कहाँ में है? NaCl में है। नाइट्रेट कहाँ में है? KNO3 में है। तो ये ऑब्वियसली इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, इसलिए हमें NaCl और पोटेशियम नाइट्रेट को प्लस किया क्योंकि इसमें एक एक आयन कॉमन है, कैटायन और एनायन। माइनस किसको करेंगे? जिसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड। इस फॉर्मूले में सोडियम नाइट्रेट में ना तो पोटेशियम है ना तो क्लोरीन है, क्लोराइड है। ठीक है, इसलिए हमें KCl को माइनस करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू कोह्लराउच लॉ सीधा सीधा फॉर्मूला बना देंगे यहाँ पे, सोडियम नाइट्रेट इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट माइनस अमोनियम माइनस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, इनकी वैल्यू रख के सॉल्व करने पे मिलेगा हमको 87 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट, at 25 डिग्री सेल्सियस the molar conductance at infinite dilution for strong electrolytes, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए यहाँ भी वही ट्रिक कि 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू दिया है और एक का हमें निकालना है, तो पहले हमको ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहले डिस्कस किया कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कॉमन क्या है? बेरियम। बेरियम कहाँ में दिखाई दे रहा है? यहाँ में, तो बेरियम क्लोराइड। ठीक है, OH यहाँ में, OH कहाँ में? NaOH, तो ऑब्वियसली NaOH और बेरियम क्लोराइड इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें प्लस करना होगा। ठीक है, माइनस किसको करना होगा? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है। बैलेंस करने के लिए यहाँ में 2 OH है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ में 2 क्लोरीन है तो इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू रख के सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 524 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज गिवन। नाउ फॉर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके लिए हमें 2 आयंस की वैल्यू दिया हुआ है, HN और एसिटेट आयन। सो ये गिवन है मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू कोह्लराउच लॉ वी कैन राइट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, HN और एसिटेट आयन, ये दोनों वैल्यू जुड़ा हुआ है, दोनों को प्लस कर दिया तो हमें मिल गया 390.5।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया 0.1 दैट इज 10% डिसोसिएटेड।